جو بہت ساری تقریریں سننے کے بعد, آج جو بہت ساری حدیثیں سننے کے بعد, آج بہت ساری قرآن کی آیات سننے کے بعد ہمارے اندر جو بدلاؤ نہیں آتا, آج جو میرے بھائیوں فلسطین کا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے, کبھی ہلدوانی کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے, کبھی میرے بھائیوں بہت سارے سیکٹر کے اندر, بہت سارے ممالک اور بہت سارے شہروں کے اندر ہمارے نوجوانوں کا خون بہایا جاتا ہے, ہمارے مسلمان نوجوانوں کے ساتھ موب لنچنگ کی جاتی ہے. اس کے باوجود اگر ہمارے اندر کوئی اثرات, کوئی تبدیلی, کوئی بدلاؤ, کوئی چینجنگ نہیں آ رہا, تو سمجھیں آپ کا ایمان کمزور پڑ چکا ہے, آپ کے ایمان کا نور بجھ چکا ہے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے کسی کے سینے کے اندر, تو اس کے بہترین اثرات اور پازیٹو ایفیکٹ اس پر پڑتے ہیں. ایمان یہ ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس دولت کو ہر ایک کو عطا نہیں کرتا ہے. دنیا کے اندر اگر سب سے قیمتی دولت ہے, سب سے قیمتی شے اور چیز کوئی ہے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے. اس ایمان کی خاطر اللہ عز و جل کے بہت سارے بندوں نے نہ صرف اپنی جان کی قربانیاں بلکہ اپنے گھر بار کو بھی ایمان کے تحفظ کی خاطر, ایمان کی حفاظت کی خاطر قربان کر ڈالا. تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے, جس کو یہ حاصل ہو جاتی ہے دنیا کی, اس کو عظیم نعمت مل چکی ہے. ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کو محلات ملتے ہیں, بہت سارے دھن دولت ملتی ہے, لیکن اس کو اگر ایمان کی دولت میسر نہیں آئی, تو آپ دیکھیں قارون کی مثال آپ کے سامنے ہے, فرعون کی مثال آپ کے سامنے ہے, شداد کی مثال آپ کے سامنے ہے. ان کو ایمان کی دولت نہیں ملی, یہ مٹ گئے, لیکن آج لوگ ان کو برائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں, ان کی مذمت کرتے ہیں. ان کا دھن, ان کی دولت, ان کی شہرت, ان کا دبدبا, ان کا روب سب ختم ہو چکا. لیکن یہ ایمان جس کے سینے میں آ گیا, دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کامیابی بخشی اور اس کا ذکر لوگوں کی زبان پر جاری کیا, اس کی محبت لوگوں کے سینے میں داخل کی, اور جب وہ قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو فرشتے بھی اس کے استقبال کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. تو یہ ایمان بڑی قیمتی شے ہے, اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر کروڑ احسان ماننا چاہیے اللہ کا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے. یہ ایمان جو ہمیں گھر بیٹھے مل گیا ہے, بڑی آسانی کے ساتھ مل گیا ہے, جو ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چل کر جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اور اس ایمان سے وابستگی کے لیے صحابہ کے ادوار کو دیکھیں, صحابہ کی زندگی کو دیکھیں. صحابہ نے کیسے ظلم و ستم کا سامنا کیا, کیسا ان پر ستم کے پہاڑ اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے, لیکن انہوں نے مثال قائم کر دی. انہوں نے جو ہے بتا دیا کہ جس کے سینے کے اندر مضبوط ایمان آتا ہے, اگر اس کے جسم کا ایک نکال لیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ ایمان کا سودا کر لے, تو اس کو یہ تو گوارا ہوتا ہے کہ میں اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ نکلوا لوں, لیکن یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ ایمان کا سودا کر دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر ہے, آپ کو کوڑے لگائے جا رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ محمد کے دامن کو چھوڑ دے, لیکن آپ دیکھیں تاریخ میں لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر اللہ احد کے نعرے تھے. اور حضرت خباب کو دیکھیں, اس ایمان کی حفاظت کی خاطر جب ایمان کامل ہوتا ہے, جب ایمان مضبوط ہوتا ہے, حضرت خباب کی زندگی سے آپ کو مضبوط ایمان کی مثال نظر آئے گی. ان کو بہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے, جسم کی چربی بہ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے محمد کے دین کو چھوڑو, اسلام سے منحرف ہو جاؤ. لیکن وہ دیوانے تھے, انہوں نے اسلام کا حقیقی طور پر جو ہے جامہ پہنا تھا, وہ نام کے مسلمان نہیں تھے, وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ان کی زبانوں پر ایک شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں ترجمانی کی ہے, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. ایک جان, بلکہ یہ تمنا ہوتی تھی صحابہ کی کہ اگر اللہ کی راہ میں ہمیں قتل کر دیا جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر زندگی عطا فرما دے, پھر ہم اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں, شہید ہو جائیں. جب شہید کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے, تو شہید سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا چاہتے ہو. حالانکہ اس کو مقام علیین میں اور حالانکہ اس کو عرش کے نیچے ایک درخت ہے, اس پر جو ہے پرندوں کی شکل میں اس کی روح ڈال دی جاتی ہے اور وہ لٹکے رہتے ہیں درختوں پر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا چاہتے ہو, تو وہ شہید یہ کہتے ہیں حدیث کے اکارڈنگ, حدیث میں آتا کہ مولا تو ہمیں پھر واپس بھیج دے, ہم تیری راہ میں پھر تیرے دین کی متین کی خاطر قیام کریں, قتال کریں, مقابلہ کریں ظالموں سے اور شہید ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ ایمان جب کامل ہوتا ہے تو
तो दुनियादारों का खौफ नहीं होता। हमारे दिलों पर आज जो खौफ तारी है, इसकी वजह यह है कि हमारे ईमान कमजोर पड़ चुके हैं। कभी हम एनआरसी के नाम पर डरते हैं, कभी हम जो है मेरे भाइयों सीए के नाम पर डरते हैं। ये क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है? ये खौफ जो हमें खाया जा रहा है, ये खौफ जो हमें अंदर से पिघला रहा है, हमारे हौसलों को पस्त कर रहा है, ये नतीजा इस बात का है कि हमारे ईमान कमजोर हो चुके हैं। सहाबा तो वो थे, आप तादाद उनकी देखें, उनकी तादाद से पता चलता है कि हमारी ताकत तादाद के अंदर नहीं है, हमारी कुव्वत तादाद के अंदर नहीं है, बल्कि ईमान बिल्लाह पर है, अल्लाह तबारक व तआला पर। अगर सच्चाई के साथ ईमान को कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर दुनिया की सुपर पावर भी आपके सामने होगी, तो नहीं डरेंगे। मूसा नबी को देखें, सामने फिरऔन है, लेकिन अल्लाह के पैगाम को बयान करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखें, सामने नमरूद है, अल्लाह के पैगाम को बयान करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। आग में भी डाल दिया जाता है, लेकिन कबूल है। और ये कबूल नहीं है कि अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ हो। तो ये मजबूत ईमान के असरात हैं मेरे भाइयों, जो जिस्म पर मुरत्तब होते हैं और जिंदगी के अंदर इसका ज़हूर होता है। एक रूमियों के दस्ते ने एक मोमिन को कैद किया। आप ईमान कामिल और मजबूत ईमान के असरात को देखें कि जब ईमान मजबूत होता है दिल के अंदर, तो क्या असरात होते हैं जिंदगी के अंदर। रूमियों ने उसको कैद कर लिया, 40 दिन तक मुतवातिर अंधेरी कोठरी के अंदर उसको कैद किया गया। 40 दिन तक कैद किया गया, न खाने के लिए कुछ दिया गया, न पीने के लिए कुछ दिया गया। खाने के लिए जो दिया जाता था, जो इस्लाम के अंदर हराम शह खिंजीर का गोश्त दिया जाता। लेकिन जब रूमी सिपाही आकर देखते, वो दस्तूर गोश्त वही पड़ा मिलता। अल्लाह अकबर, 40 रोज हो गए। बादशाह ने उसको बुलाया कि ये ऐसे शिकस्त खाने वाला नहीं है। बादशाह ने कहा, बताओ क्या चाहते हो? कहा, मैं सब कुछ गवारा कर सकता हूँ, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। नौजवानों, आप अंदाजा लगाएं ईमान कितनी ताकतवर चीज है, लेकिन इसको आज हम फरामोश कर चुके हैं। हमारे दिल के अंदर ईमान का नूर घुस चुका है, और इस ईमान के लिए गुनाह जो है, अल्लाह की नाफरमानी जो है, जहरे कातिल की तरह है। आज हम अपनी आंखों से गुनाह करते हैं, जबान से जो है बदगोइया करते हैं, झूठ लाते हैं जबान पर, लोगों को धोखा देते हैं, पेट के अंदर लुक्मा हराम डालते हैं। लुक्मा हराम की आप अंदाजा लगाएं क्या नहुसत हो सकती है। एक गोली टैबलेट जो मर्ज के लिए आप खाते हैं, उसकी देखें मिकदार कितनी कम होती है, कितना उसका छोटा साइज होता है, जिस्म पर कैसा इफेक्ट और असर पड़ता है, आप अंदाजा लगाएं। फिर लुक्मा हराम जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ममनू करार दिया है, जब वो पेट के अंदर जाता होगा, आप अंदाजा लगाएं उसकी नहुसत कैसे दिल पर और कैसे जिस्म के अंदर और कैसे उसके ज़मीर पर असर करती होगी, कैसे उसके रूह पर असर करती होगी। आज जो बहुत सारी तकरीरें सुनने के बाद, आज जो बहुत सारी हदीसें सुनने के बाद, आज बहुत सारी कुरान की आयत सुनने के बाद हमारे अंदर जो बदलाव नहीं आता, आज जो मेरे भाइयों फलस्तीन का मंजर हमारी निगाहों के सामने आता है, कभी हल्द्वानी का मंजर हमारी आंखों के सामने आता है, कभी मेरे भाइयों बहुत सारे सेक्टर के अंदर, बहुत सारे ममालिक और बहुत सारे शहरों के अंदर हमारे नौजवानों का खून बहाया जाता है, हमारे मुसलमान नौजवानों के साथ मॉब लिंचिंग की जाती है। इसके बावजूद अगर हमारे अंदर कोई असरात, कोई तब्दीली, कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, तो समझें आपका ईमान कमजोर पड़ चुका है, आपके ईमान का नूर बुझ चुका है, और उसका सबब जो है अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह के साथ, अल्लाह के कुरान के साथ खिलवाड़ करना है। मेरे भाइयों, आप ईमान की मजबूती और इसके इफेक्ट को देखें, इसके बेहतरीन और मुस्बत असरात को देखें। आज बहुत सारे मुसलमान जो मेरे भाइयों आपको शराब से दूर नजर आते हैं, नशे से दूर नजर आते हैं, बहुत सारे नौजवान आपको जो है बेहयाई से अपने आप को बचाते नजर आते हैं। एक ताजिर जो है झूठ से बचता नजर आता है, एक सौदा करने वाला मेरे भाइयों इस फरेब करने से बचता नजर आता है। आज जो मेरे भाइयों, आज ये नमाजों की आपको नमाजियों की तादाद आपको नजर आ रही है, सरों पर जो टोपियां आपको नजर आती हैं, आपके दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान का एक जज्बा है। इसके पीछे कौन सी चीज है? इसके पीछे मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान कामिल है। ईमान कामिल होता है तो गुनाहों से रोकता है, ईमान कामिल होता है बदनिगाही से रोकता है। अगर ईमान कमजोर पड़ जाता है तो लोग, नौजवान अपनी ही कौम की बेटियों को जो है भेड़ियों की तरह निगाहों से देखते हैं। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाएं, जो नौजवान अपनी पूरी रात रीलें देखते हुए गुजार रहा हो और उसको यह एहसास भी बाकी न रहा हो कि उसका ईमान किस कदर कमजोर पड़ चुका है, उसकी मेरे भाइयों ये दीनी जिंदगी तबाह हो चुकी है, और उसको एहसास भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो अपनी दुनिया में ऐसा मगन है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा मेरे भाइयों कि वो तौबा करना चाहेगा गुनाहों से, वो गुनाहों से रुजू करना चाहेगा, गुनाहों से अपने आप को बचाना चाहेगा, लेकिन ईमान का नूर
बुझ चुका होगा, ईमान इस कदर कमजोर हो चुका होगा, न वो बेहयाई से अपने आप को रोक सकेगा, न वो नशे से अपने आप को रोक सकेगा। आज बहुत सारे नौजवान उन अभ्यास में पड़ चुके हैं, उन डिबेट्स में पड़ चुके हैं, उन बातों में पड़ चुके हैं जिसका मेरे भाइयों सदियों पहले जो है बड़े बड़े अहले इल्म के दरमियान चर्चा हुआ करता था। यानी लोग कोई इस बात पर बहस कर रहा है कि कानों तक हाथ उठाने हैं या सीने तक हाथ उठाने हैं या सीने पर हाथ बांधने हैं या नाक के पास हाथ बांधने हैं। लोग इन अभ्यास में, इन बहसों में पड़े हुए हैं। लेकिन आज हमारे नौजवानों को देखें, हम इन बहसों में पड़ते रहे, लेकिन हमारे कौम के नौजवान आप देखें नशे की तरफ तेजी से जा रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, हम इन अभ्यास में उलझे हैं, लेकिन कौम के जवान नशेड़ी होते गए, कौम के जवान शराबी बनते गए, कौम की बेटियों ने ईमान के सौदे किए। लेकिन आज हम इन अभ्यास में पड़े हैं जो ला यनहल मसाइल हैं। लेकिन आज हमारे भाइयों का हाल ये है मेरे भाइयों कि उनके ईमान कमजोर पड़ चुके हैं। दुश्मन हमारे इस्लाम और ईमान पर हमला कर रहा है, लेकिन हम इन अभ्यास में पड़े हैं। इसका हमें एहसास भी नहीं है कि हमारे साथ मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, हमारी जिंदगी के साथ, हमारे ईमान के साथ, हमारे इस्लाम के साथ। मेरे भाइयों बड़ी तेजी के साथ, मैं पहले भी बयान कर चुका हूं आपको, बड़ी तेजी के साथ आम परिवर्तन होने वाला है। बहुत सारे जवान, बहुत सारे बूढ़े, बहुत सारी लड़कियां मेरे भाइयों ईमान के सौदे करने वाली हैं। अगर हमने अपने घरों पर इस बात की ट्रेनिंग नहीं की, तरबियत नहीं की कि अपने आने वाली नस्लों के ईमान की फिक्र नहीं की, तो हम नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अपनी आंखों से देखेंगे, अपनी आंखों से हम जवानों को खुदा का इनकार करते हुए देखेंगे। नाऊज़ बिल्लाह अपनी आंखों से देखेंगे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऑब्जेक्शन और एतराज करेंगे। अपनी आंखों से देखेंगे वो इस्लाम से अपने आप को दूर करते नजर आएंगे। आज वक्त है मेरे भाइयों, फिक्र कर लें, इसका ठेका किसी मुफ्ती का नहीं है, इसका ठेका किसी मौलवी का नहीं है। कल मैदान महशर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल सब निगरां हो अपने मातहतों के, यानी भाई, छोटे भाई का, बाप अपने बच्चों का निगरान है। कल मैदान महशर में उससे उसके बाद बच्चों के मुताल्लिक, उसके भाइयों के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। तो फिक्र इस बात की करनी है मेरे प्यारे भाइयों कि हमें अपने ईमान को भी मजबूत करना है। और याद रखो, ये नौजवानों को पैगाम है मेरा, आप जो रीलें देख देख कर ये सोच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं कॉमेडी वीडियो देखकर, ये आपके ईमान के लिए जहर कातिल है जिसकी आपको पता भी नहीं है। आप 3 दिन छोड़ने की कोशिश करके देखें, आपको पता चलेगा कि आपका ईमान किस कदर कमजोर पड़ चुका है। आप कोई गुनाह से अपने आप को बचाने की कोशिश करके देखें, आपका नफ्स अम्मारा आप पर इतना हावी आपको नजर आएगा, शैतान का सहर, शैतान का जादू आप पर इस कदर हावी नजर आएगा, आप अपने आप को गुनाह से रोकता हुआ नहीं पाएंगे, बल्कि आप अपनी शिकस्त पाएंगे। आपका ईमान इस कदर कमजोर पड़ चुका है। आप एक बुराई को छोड़ने का इरादा करके देखें, आपके अंदर जो मेरे भाइयों ज़मीर है किस कदर मुर्दा हो चुका है, आपकी रूह किस कदर बीमार हो चुकी है, आपको उस वक्त एहसास होगा। तो वक्त मेरे भाइयों रीले देखने का नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर खौफे खुदा आए, अगर आप चाहते हैं कि आप जालिम हुक्मरानों से खौफजदा न हो, तो एक ही चीज है जो आपको हर जालिम के सामने खड़ा कर सकती है, वो अल्लाह का खौफ है। और ये खौफ इलाही उस वक्त ही आएगा जब आपका ईमान मजबूत हो सकेगा। और इस ईमान की कमजोरी के असबाब मैंने आपको बयान कर दिए हैं। गुनाह है मेरे भाइयों, गुनाह। ये गुनाह रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसको आप बड़ा छोटा सा तशक्कुर करते हैं ना, ये गुनाह मेरे भाइयों, एक गुनाह की वजह से आपके दिल पर एक सिया नुक्ता लग जाता है। जब आप दूसरा गुनाह करते हैं तो फिर सिया नुक्ता लग जाता है। और जब आप मुतवातिर गुनाह करते हैं, नौजवानों अपनी जिंदगी के अंदर झांक कर देखो जरा, आपकी जिंदगी के अंदर कितने गुनाह हैं। अय्याशियों का गुनाह, लड़कियों को छेड़ने का गुनाह, बदनिगाही करने का गुनाह। हमारी जो खवातीन है उनको भी ये पैगाम इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, जो खवातीन ये समझती हैं कि फैशन के नाम पर हम जो है जमाने के साथ चलेंगे, बालों को खोलकर तंग और बारीक लिबास पहनकर हम शादियां अटेंड करेंगे, मेरे भाइयों वो अटेंड कर तो लेती हैं, लेकिन उसके बाद जो बुराइयां जन्म लेती हैं, आज देखें आपके सामने है मुआशरे का पूरा माहौल। बहुत सारे शादीशुदा हजरात, बहुत सारे शादीशुदा नौजवान और लोग शादी करने के बाद भी उनके अंदर जो दूसरी औरतें और दूसरी लड़कियों की तलबें और ख्वाहिशात नाजायज मौजूद हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या असबाब है? यही मेरे भाइयों खवातीन के अंदर पैदा होती हैं। एक तो तकब्बुर की वो आ जाती है बीमारी उनके अंदर, दूसरी जो जन्म लेती है, बहुत सारे अफेयर के मामला मुआशरे के अंदर आपको मिल जाएंगे। शादी हो चुकी है लेकिन नाजायज ताल्लुकात, नाजायज संबंध दूसरे मर्दों से, और ये जन्म लेती है ख्वाहिशात उस वक्त जब वो औरत, जब वो लड़की अपने बालों को खोलकर, ये तंग बारीक लिबास पहनकर जब बेहयाई के साथ निकल जाती है, तो शैतान उसके अंदर जो है ये वसवसे डालता है दूसरे मर्दों की, यानी शादी हो चुकी है दूसरे मर्दों के साथ
یعنی ہم بستر ہونے کی خواہشات اس کے اندر پیدا کرتا ہے، اور پھر یہ شروعات ہوتی ہے، یہ آغاز ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے، بہت سارے معاملات دیکھے ہوں گے میرے بھائیوں، اس لیے وقت ہے کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو بے حیائی سے روکیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حیا جو ہے ایمان کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے، اس لیے اپنے اندر حیا لانے کی کوشش کریں۔ نوجوانوں کی گزارش ہے، یہ دور فتنوں کا دور ہے، آپ کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر خوف، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا۔ اور یہ خوف کیسے آئے گا میرے بھائیوں؟ یہ ریلیں دیکھنے سے نہیں آئے گا، گانے سننے سے نہیں آئے گا، فلمیں دیکھنے سے نہیں آئے گا۔ آپ کے اندر جو فسادات سیریل، فلمیں، گانے ڈالتے ہیں، اس سے زیادہ اس دور کے اندر اگر کوئی فاسد چیز نہیں ہو سکتی ہے، سب سے بڑا فساد اس دور کے اندر میوزک ہیں، گانے ہیں، جس کا آپ کو احساس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں لاحول کی کثرت کریں، نوجوانوں سے گزارش ہے، اللہ سے دعا کریں، حدیث میں جو رسول اللہ نے بیان کی ہیں دعائیں وہ کریں، اور رات کو سونے سے پہلے ایک بیان ضرور سنیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنی اصلاح کرنا۔ ورنہ یہ مت سوچیے گا جب بے حیائی عام ہوتی ہے نا، اور لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک پاتے ہیں اور بے حیائیوں کے بازار عام کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چنگیز خان جیسے کو پیدا کرتا ہے، پھر سے فرعون کو پیدا کرتا ہے، پھر سے جو ہے حامان و شداد و نمرود کو پیدا کرتا ہے، پھر سے ہٹلر جیسے پیدا ہوں گے جو تمہیں تباہ و برباد کر جائیں گے، اور تم کچھ نہ کر سکو گے، تمہارے بچوں کے ساتھ ظلم ہوگا، تم کچھ نہ کر سکو گے۔ روایت میں آتا ہے تمہارے بوڑھے دعا کریں گے، پھر ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے